Good morning, students. In today's class, we are going to start second chapter of class 10, chemistry, acid, bases, and salt. In previous classes, we had already studied about the basic concept of acid, bases, and salt. It was in class 8. Commonly, acids are considered as a materials which are having sour in taste. ऐसे चीजें जो खट्टे होते हैं उनको हम लोग एसिड की कैटेगरी में रख देते हैं कॉमनली, बट इन द केमिकली देयर आर few definitions, another few definitions are there. So first of all you have to know the acids are materials which are sour in taste, and we will study another concept of acids, how acids are recognized, and bases and so on. Sour in taste, टेस्ट। खाने में जो खट्टे होते हैं उनको हम एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा एसिड को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम चेक करें कि कौन सा मटेरियल एसिड है। केमिकली हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज एसिड। उसी तरह बेस, बिटर इन टेस्ट, bitter in taste. The materials those are bitter in taste, they are considered as a base. Salt, generally you are also using we are all using the material salt in our daily life, so their taste it will be salty in taste. In this way, it is common recognizing methods of acid and base and salt. But suppose we are having the chemicals, very dangerous chemicals, so we cannot taste them. So that material can be recognized in another way. Another way, like we can use indicators. We can use indicators to recognize acid, bases and salt. What are the indicators? The new word has come to us, indicator. This word you had already listened in your previous classes, in the same class 8 में आप लोगों ने पढ़ा है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स मींस जनरल मीनिंग है सूचक, जो हमको कोई सूचना दे। तो एसिड बेस इंडिकेटर या इंडिकेटर, सिंपल वर्ड में हम इंडिकेटर बोलते हैं, और चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हम इनको एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। ऐसे मटेरियल्स, केमिकल्स जो हमको एसिड और बेस का पता लगाने में मदद करते हैं। We can easily recognize the acid and bases by the help of few chemicals and the materials. It will be natural or synthesized. ये नेचुरल भी पाए जाते हैं हमारे नेचर में, जैसे आप we can take some petals of flower as well as few materials like clove oil, लौंग का तेल, vanilla, onion. These are the natural indicators. And another, we can also having the synthesized chemical in the lab. They are also used as a indicators. Indicators means which are helping us to know the acid and base. So in this chapter we will study about the acid, base and salt, their chemical reaction, and first of all we have to know the process of indicating the materials as acid and base. किसी एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम एसिड का इंडिकेटर का यूज कैसे कर सकते हैं, एंड कितने प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं ये भी हमको पता लगाना होगा। So let us go to know
indicators. Types of indicator. It belongs to basically two group, natural and synthesized. Natural indicators you are having very common natural indicators that you had already experienced in your previous classes. Litmus paper. Litmus also found in two categories. In solution के रूप में पाया जाता है और पेपर के रूप में पाया जाता है। जो पेपर के रूप में पाया जाता है वो दो कलर के होते हैं, रेड एंड ब्लू। ये आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा है कि लिटमस पेपर दो कैटेगरी में होते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अब ये दोनों जो लिटमस पेपर है ये हमको एसिड और बेस का पता लगाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं, हाउ रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द मटेरियल इज आइदर इट इज एसिड और बेस। So let us see here. If you are having an acid, then you have to use the blue litmus paper. That blue litmus paper, when it is combined or it will be mixed with a few drop of acid, you will find the new color of litmus paper. That litmus paper turn into red. ये लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ब्लू से रेड। याद रखिएगा, अगर हम यहाँ बेस लेते हैं, इसकी जगह पर अगर बेस लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर पे, तो वी विल नॉट फाइंड एनी चेंज, हमको कोई चेंज नहीं मिलेगा। It means that blue litmus paper is used for testing acid only. याद रखिएगा, blue litmus paper एसिड को चेक करने के काम आता है। अब इसी के जगह पर लेते हैं हम एक बेस जो कि रेड लिटमस पेपर के साथ हम इसको मिक्स करते हैं। Suppose we are having few drop of base which will be poured on red litmus paper. रेड लिटमस पेपर पे हम कुछ ड्रॉप डालते हैं बेस के, तो हमको क्या मिलेगा, दैट लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू। ये लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर बेस के साथ मिलने से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। How litmus paper help us to identify the acid and base? Clear? Another natural, let us see another natural indicators and its effect with the acid and base. There are vanilla, clove oil, petals of some flowers and onion। ये जो मैंने तीन लिखे हैं ध्यान दीजिएगा, these three natural indicators, they are having the special characteristics, they are special indicators. How they are special indicators? Because they do not change any color with mixing of acid and base. They change the smell with the acid and base. याद रखिएगा, इनके साथ अगर हम कोई एसिड या if we are adding acids or base with them, अगर वेनिला, क्लोव ऑयल और ऑनियन के साथ हम एसिड मिक्स करते हैं या बेस मिक्स
तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेंगे, ये अपना स्मेल चेंज करेंगे, इनका जो ऑर्डर है, गंध है, वो चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा एसिड के साथ इनका कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ये तीनों जो मटेरियल्स हैं एसिड मिलाने पे इनका स्मेल में कोई चेंज, नो ऑर्डर चेंज, कोई चेंज नहीं। बेस के साथ ये क्या होंगे, याद रखिएगा दे विल चेंज हियर बेसिक स्मेल, जो इनका बेसिक ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा और कोई नया एक ऑर्डर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा चेंज स्मेल। तो एक नया चीज मिला आपको, हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि लिटमस पेपर विल चेंज इट्स कलर मिक्सचिंग ऑफ एसिड एंड बेस, उसमें रेड था और ब्लू। लेकिन यहाँ पर वी आर हैविंग फ्यू मटेरियल्स, नेचुरल मटेरियल्स लाइक वेनिला, फ्लावर ऑयल, ऑनियन, दे कैन चेंज देयर स्मेल आफ्टर मिक्सिंग बेस ओनली, नॉट एसिड। मींस इट इज बेस इंडिकेटर, हम बोल सकते हैं ये तीनों क्या है, बेस इंडिकेटर, बेस को इंडिकेट करते हैं, एसिड के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, जिससे ये अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं। याद रखिएगा। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज इंडिकेटर्स आर, ये सिंथेटिक को हम लोग बाद में देखेंगे, दीज आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आता है। अभी हम नेचुरल ही देख रहे हैं, याद रखिएगा। नेचुरल में हम लोगों ने पहले लिटमस का एग्जांपल देखा, लिटमस सॉल्यूशन में भी पाया जाता है, पेपर में भी पाया जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो लिटमस है वो किससे बना है, लाइकेन। लाइकेन एक पौधे के समान, हर्ब के समान दिखता है, लेकिन हर्ब नहीं होता, वो थैलोफाइटा कैटेगरी का एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट कैटेगरी से बिलोंग करने वाला। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन एसिड और बेस विद द हेल्प ऑफ सम नेचुरल मटेरियल्स व्हिच आर बिलोंग्स टू इंडिकेटर कैटेगरी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटमस देखा हम लोगों ने, फिर स्मेल चेंज करने वाले कुछ इंडिकेटर्स देखे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि सिंथेटिक, नाउ वी विल स्टडी synthetic indicators. Synthetic means which are synthesized in the lab, जो हम लोगों ने बनाया है। Again type of indicator, natural we have studied, natural we have studied, now it is time of synthetic. Synthetic indicators में मैं बुक में हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको। We have two examples of synthetic indicator, phenylephrine, methyl orange, methyl orange. Phenylephrine, it is one of the chemical present in our lab. Methyl orange, it is one of the dye or chemical which is also available in our lab. याद रखिएगा phenylephrine और methyl orange में डिफरेंस क्या है, दिस इज ओनली द बेस इंडिकेटर, बेस इंडिकेटर, दिस इज ओनली बेस इंडिकेटर, इट इज एसिड बेस बोथ इंडिकेटर, एसिड बेस बोथ इंडिकेटर, ये दोनों इंडिकेट करते हैं। अब इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे इंडिकेटर, दे बोथ चेंज देयर कलर, phenylephrine, methyl orange both change their color after mixing acid or base. Phenylephrine only change the color after mixing the base with it. Methyl orange can change their color with the mixing of acid as well as base. अब कलर क्या आता है, phenylephrine के साथ बेस मिलाने पे ये पिंक हो जाएगा, टर्न पिंक, टर्न पिंक।
अब यहाँ पे हमको देखना है एसिड मिलाने से क्या होगा, बेस मिलाने से क्या होगा। एसिड मिलाने से याद रखिएगा रेड कलर हो जाएगा, मिथिल ऑरेंज के साथ एसिड मिलाएंगे कलर रेड हो जाएगा, बेस मिलाएंगे तो येलो हो जाएगा। Methyl orange can change its color in the two manner. When it is mixed with the acid, they will turn into red color, and when it is mixed with the base, it will turn into red color. Clear? Whenever you are feeling any doubts, please comment. Today we have studied about the basic concept of acid, base, and its indication. How the material, some materials which are having the properties to indicate the acid and bases. Okay, thank you.